Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you the complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct landline numbers, 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। शुरुआत में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश। शुरुआत में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Power Ministry promulgates Electricity Rules 2021 to regulate transmission system planning, development and recovery of interstate transmission charges. Foreign investors pump in over 26,000 crore rupees in the Indian capital markets in September. And paddy procurement begins in Haryana and Punjab. विद्युत मंत्रालय ने ट्रांसमिशन प्रणाली के नियोजन और विकास को नियमित करने और अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क की रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए विद्युत नियमावली 2021 को लागू कर दिया है। विदेशी निवेशकों ने सितंबर के दौरान भारतीय पूंजी बाजारों में 26,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद शुरू हो गई है। In our top story, Power Ministry has promulgated the Electricity Transmission System Planning, Development and Recovery of Interstate Transmission Charges Rules of 2021. This paves the way for overhauling of the transmission system, planning towards giving power sector utilities easier access to the electricity transmission network across the country. At the present, generating companies apply for long-term access based on their supply tie-ups, while medium-term and short-term transmission access is acquired within the available margins. Based on long-term access application, incremental transmission capacity is added. A number of sector developments, such as the increasing focus on renewable energy and the development of the market mechanism, necessitated a review of the existing transmission planning framework based on long-term access application. And let's move on to our next story. और विदेशी निवेश का हाल भी जान लेते हैं। विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार बड़े खरीदार बने हुए हैं। सितंबर के दौरान उन्होंने लगातार दूसरे महीने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में इस महीने में 13,154 करोड़ रुपए इक्विटी में और 13,363 करोड़ रुपए डेट में डाले। इस तरह सितंबर में भारतीय पूंजी बाजारों में 26,517 करोड़ रुपए का निवेश आया। अगस्त में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया था। And just to remind our listeners that our direct landline numbers are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. Dhirendra, I hope you're still with us on Market Mantra. Oh, very much. Dhirendra, what is your advice to those who are seeking to invest in mutual funds for the first time? We are in the first week of October right now. You've seen a lot of activity of FIIs and DIIs. In this current state of the market, which is a fund that you would most recommend for those who are entering mutual funds for the first time? Yes, these are very difficult times.
it's a very easy time to invest because the moment you invest, the market goes up. But it's also, one should be a little careful. But, for investors getting started, I think it's pretty straightforward. Don't get attracted to the market simply because it has done well. If you are a taxpayer, if you pay tax and by investing you can save on taxes, then start with a tax saving fund and don't invest all your money at one go. Spread it over the next 6 months, which is the period available to you. If you are not a taxpayer and you're a long-term investor, because short-term investors, they should do nothing. They should put the money in the bank. And long-term investor, and by long-term I mean 5 years and more, they should be investing in a balanced fund. These funds typically, are balanced advantage funds. These funds typically invest, 75% into equity, 25% into debt. And they are a relatively steadier take on the market. If market crumbles, they don't fall that freely. So, there are many kind of funds. There are, about 50 kind of funds. But most investors starting now, these two kind of funds should be good enough. And keep doing it for 2-3 years. I think after that you will not need much of a coaching. Well, the conventional wisdom right now is stating that index funds are always the best option, even though balanced fund has the combination of equity and debt. But the index fund, when it comes to the equity stock movement of the Sensex and Nifty, would be the ideal choice for any mutual fund investor, whether here or overseas. What's your take on that in terms of risk reward? Index funds, they are actually, just beginning to make some small case. But, that is only for the large caps, because index funds do not get you exposure. They're either the top 50 companies or the top 30 companies of the Sensex. They are the index fund which is available to Indian investors, which is of a reasonable scale. They also have the great advantage of, the expense, lowest possible expense for an equity fund. But that's about it. If you want to, India is a market, is a very broad market. And the lure of equity, the charm of equity is that you are on the lookout for something which will make you wealthy. And picking a small company or picking a bunch of small companies through a small cap fund or mid cap fund and riding the market, the whole discovery process, that small company becoming big, the potential is much higher. And the charm is, of equity is that, not just participation. So I think, those numbers are still visible. If you look at 10-year SIP return of a small cap fund or a mid cap fund as compared to Sensex, the returns are quite visible. In fact, last 2-3 years, index funds have been able to make a big case for themselves simply because the institutional money in the domestic market got channelized to the index fund. The Employee Provident Fund Organization, the NPS, the money got channelized into the index fund. So that is why they look big. But I don't think investors have really taken to, individual investors have taken to index funds as yet. Well, let's take our first caller of the evening. We're joined by Ratnakar from Mumbai. A warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to the experts. Hello. Good evening, sir. मेरा सवाल है कि अभी जो रिसेंटली कोटक मल्टी कैप फंड और दूसरे जो महिंद्रा मैन्युलेक्स ये 2 फंड आए थे, उसमें हमने इन्वेस्ट किया है. तो ये दोनों फंड कैसे है, ये है. और दूसरा है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था ELSS के तहत. तो लास्ट ईयर में उसका मार्च अप्रैल में 6,000 का SIP था, वो खत्म हो गया. तो अभी वो खत्म किया था, लेकिन फिर बीच में ये लास्ट महीने में उन्होंने 6,000 SIP कट किया. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी इट इज 3 इयर्स हो गए तो बंद हो गया. तो फिर उन्होंने 6,000 बीच में ऐसा कट करेंगे तो हम उसमें वॉच कैसे करेंगे? ये हमें पैसा कभी मिलेगा? नहीं, एक तो कि आपका एक्सिस में जो पैसा लग रहा है उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है. लेकिन अगर आप देखिए कि आपने मैंडेट क्या दिया था, क्या पता कहीं आपने निवेश करते समय आपने कह दिया हो कि ये 6,000 रुपये लगातार इन्वेस्ट होते रहना चाहिए. तुरंत पता कीजिए. लेकिन ये पैसा आपका खो नहीं रहा है. लेकिन इसका एक नुकसान हो सकता है कि जो भी आपका पैसा लग रहा है आपके बैंक खाते से निकलता है और इस फंड में इन्वेस्ट हो जाता है. और आपने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है, एक ऑथराइजेशन दिया है कि आपके खाते से 6,000 रुपया महीने का निकाल लिया जाए. तो आपका पैसा खोएगा तो नहीं, लेकिन लगने के बाद आप 3 साल तक उस पैसे को नहीं निकाल सकते.
और पता नहीं आपको टैक्स की छूट की जरूरत है या नहीं है। अगर टैक्स की छूट की जरूरत नहीं है तो अपना SIP बंद कीजिए, दूसरे किसी एक्सिस के अच्छे फंड में लगाइए। हालांकि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अच्छा फंड है, आपने देखा ही होगा कि अगर पिछले 2-3 साल में आप तो इसका रिटर्न बेहतरीन है। दूसरा कि आप जो पूछ रहे हैं 2 फंड जिसमें कि आपने पैसा लगाया है, उनकी नई शुरुआत हुई है, कोटक फ्लेक्सी कैप और मैन्युलाइफ, महिंद्रा मैन्युलाइफ का जो नया फंड है, नए फंड है क्या कहा जाए। और आमतौर पे मेरी सलाह यही होती है कि नए फंड में आपको, लेकिन कोटक का जो दूसरा इक्विटी फंड है वो उनका प्रदर्शन अच्छा है और इस फंड की शुरुआत हो रही है। और महिंद्रा मैन्युलाइफ के जो फंड है वो तो ये तो कंपनी भी थोड़ी नई है और देखना होगा कि ये कैसा करती है, लेकिन एक तुरंत लगाने के तुरंत बाद इस तरह के फंड में इसके प्रदर्शन की उम्मीद खास तुरंत नहीं करनी चाहिए और ये बहुत अर्ली समय है इनको इवैल्यूएट करने का। जी, और चेन्नई से हमारे श्रोता राजगोपालाचारी जी लाइन पे हैं। राजगोपालाचारी जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग वीरेंद्र साहब एंड मार्केट मंत्रा टीम। जी, गुड इवनिंग सर, I have one clarification, sir. That is, suppose I invest 50,000 rupees in mutual fund and I want to take it after 1 year or 6 months. Can I take it back, sir? Yes, in most mutual funds you can take your money anytime, except for the tax saving fund, because the moment you invest, they get locked in. You can't take your money out till they remain invested for at least 3 years. And from the date of investment. Beyond that, all other funds, there might be a little bit of penalty, like equity funds, they charge 1% of your money invested. They are primarily, trying to encourage you to invest for the long term. One should be investing in equity for the long term. Mutual funds definition of long term is either 1 or 2 years. Most mutual fund companies actually levy exit load of 1% if you redeem within 1 year. But despite that, you can take your money out anytime. अगले कॉलर है निशांत फ्रॉम रांची। निशांत जी, a warm welcome to you on the program. Please ask your question to the expert. Good evening, Market Mantra team. And धीरेन्द्र जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये मुझे एक स्मॉल कैप इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए SIP करना है। मेरे पास अभी बैलेंस फंड है और मिड कैप और लार्ज कैप फंड है, तो मुझे एक शॉर्ट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक स्मॉल कैप फंड बताइए प्लीज। स्मॉल कैप में पैसा लगाने का ये बड़ा अनुचित समय है और आप देख लें कि जब स्मॉल कैप में आप पैसा लगाएंगे तो जब बुरा समय आता है तो स्मॉल कैप में किस तरह की गिरावट होती है वो उससे काफी लोगों को डर लगता है। पिछली बार जब बाजार में गिरावट हुई थी, अगर ज्यादा पहले की बात करें तो 70-80% की गिरावट आपका 100 रुपये लगा हुआ बच के केवल 20 रुपए या 25 रुपए रह जाता है तो बड़ी चिंता होती है। लेकिन लगाना जरूर चाहिए। भारत का बाजार इतना विस्तृत है कि अगर आप इस उतार चढ़ाव को विथस्टैंड करने का कोई तरीका निकाल पाते हैं, और इसको निकालने का तरीका ये है कि धीरे धीरे पैसा लगाइए, लंबे समय का ही पैसा लगाओ ताकि आपको चिंता ना हो। और कि अब क्या होगा अगर ये पैसा जो अभी प्रदर्शन है आपको तुरंत पैसे की जरूरत पड़ी, तो वैसी स्थिति में अगर मुझे कुछ 2-3 फंड गिनाना हो तो निपॉन का स्मॉल कैप फंड या SBI का स्मॉल कैप फंड या एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, ये कुछ बेहतरीन फंड है। लेकिन ये मेरी सलाह पे जाने के बजाय अगर आप इसमें जो स्मॉल कैप फंड में लोगों को खासकर फायदा होता है वो उनके अपने वजह से होता है। एक तो आप लगातार लगाते रहिए, बुरा समय है तब भी अपना निवेश जारी रखिए, एक साथ पैसा मत निकालिए, घबराहट में पैसा मत निकालिएगा। इन चीजों की वजह से, और स्मॉल कैप तो जब भारत में छोटी कंपनियां जब बड़ी होती हैं तो बहुत रफ्तार से बढ़ती हैं और उसमें समय लग जाता है। और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर नमस्कार। मेरा सर 2 प्रश्न है कि अभी जो NFO कई निकल रहे हैं और आ रहे हैं तो क्या उसमें लगाना चाहिए, और नेस्डेक कैसा फंड है सर?
और दूसरा सर कि जैसे इक्विटी में हम लोग देखते हैं किसी स्टॉक का वो करने में कौन सा स्टॉक अच्छा है तो उसका पी रेशियो, आरओई, आरओसी, 3 साल का बैलेंस शीट, ये सब देख के हम लोग को समझ में आ जाता है कि क्या है। म्यूचुअल फंड में कैसे हम पकड़ पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा सा है? नहीं, अगर आपको देखना होगा तो म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना है? ये सब चीज आप खुद ही करने में अगर आप सक्षम हो, इसीलिए म्यूचुअल फंड बना है। लेकिन म्यूचुअल फंड पे जो कुछ भी है, जो कुछ भी जानकारी है, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे, हमारी वेबसाइट पे भी, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे आपको ये उपलब्ध है। I'm afraid there was a brief break in transmission with our mutual fund expert Dhirendra Kumar, who has just explained to our प्रदर्शन कैसा है और गिरते बाजार में इसका प्रदर्शन कैसा रहा है, चढ़ते बाजार में प्रदर्शन कैसा रहा है। एक नया प्रावधान हुआ है, रिस्कोमीटर। सेबी ने ये इसका प्रावधान किया है, जो कि अगर फंड के कैरेक्टर में आप उससे रिस्क और रिटर्न का जो ग्रेड है, उस पर ये फंड कहाँ बैठता है, इसकी जानकारी मिल पाती है। और इसके अलावा इसके पोर्टफोलियो पे वही सब चीज जो आप कंपनी के बारे में देखते हैं, तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे उपलब्ध है। Dhirendra, you spoke about the new fund offers and Yes. Especially by the sponsors or the promoters of the new fund. How important is the appointment of a portfolio manager? What is their reputation and image in the market, and is that to be considered? And is artificial intelligence also employed in the buying and selling of securities, especially in balanced funds? Dhirendra, I hope you can hear us. Balanced funds, where there is a fund manager. He is designated for managing the fund in line with the stated objective, which an investor has chosen. And the regulations are, quite elaborate about all the fund that will do, all the things that the fund will not do, explaining the background of the fund manager. And fund companies, there is a legal structure mandated. There is a 3-entity legal structure. There is an AMC asset management company. There is a sponsor of that asset management company, and there is a trustee company which is responsible for keeping an oversight on the asset management company's actions for managing investors' money. Effectively, asset management company is responsible, has the mandate to manage that money under the oversight of the trustee companies who are representing the interests of the investors. There's a legal structure. Reputation matters in a sense that, if a mutual fund ends up doing something messy, they will be out of business. And it will be very scary for other investors. This is actually more than managing money. It is a reputation business. It's investors' trust in them. So I think they have, one is that the laws enforce a certain compliance standard. And I think on that front, mutual funds have been way above the mark, so to say. My question is also about the market performance of the portfolio manager. It is all there, it is all mandated. When you are investing in a fund, and if there are other fund managers, if other funds managed by the same fund manager, his performance is to be disclosed and relative to benchmark for all the funds that he is managing and since beginning. और मुंबई से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव नई मुंबई से बोल रहा हूँ। जी हाँ सर, मतलब एक आम निवेशक के नाते जो महंगाई बढ़ गई है थोक भाव में या मिलने में, तो अपनी जो आमदनी भी घटती जा रही है, पर देखा जाए तो जो खर्चे बढ़ रहे हैं। तो सर इस उपलक्ष्य में जो देखता है इस परिवेश में कि मतलब एक आम कैसे बचत करना चाहिए, मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए था कि मैं निवेश किसमें शेयर मार्केट में करूँ या जो पोस्ट ऑफिस है, इस बारे में सर। ओके, आपकी चिंता बिल्कुल मुझे समझ आती है कि महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें कम हो रही हैं और आमदनी के बढ़ने का जो आउटलुक है, जो उम्मीद है, वो भी कोई बहुत ब्राइट नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आपके पास बचा कुछ पैसा है, वो कम से कम रफ्तार से बढ़े, ये जरूरी है। और इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इक्विटी में पैसा लगाना आपके लिए जरूरी है, लेकिन इक्विटी में पैसा लगाना बड़ा खतरनाक भी है। खासकर जब आप सीधे इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो रफ्तार से बाजार चढ़ रहा होता है, और उसके बाद जब आपका पूरा भरोसा हो जाता है तब अचानक बाजार गिरता है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, और उसके बाद आप अपना पैसा गिरने के बाद निकाल लेते हैं। इसलिए बाजार में पैसा लगाने का बेहतरीन तरीका है कि आप धीरे धीरे पैसा लगाएं इक्विटी में, इक्विटी फंड्स के जरिए।
कम से कम पैसा आपका ज्यादा रफ्तार से बढ़ पाएगा, महंगाई से ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ पाएगा, जो कि आपके लिए बड़ा जरूरी है और फायदेमंद है। अगर आपका पैसा महंगाई के दर से जितना ही या उससे कम बढ़े तो आपको लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा कम हो रहा होगा। और उससे जूझने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप रियल एसेट्स में पैसा लगाएं, जो कि इक्विटी फंड्स आपको ये जरिया देता है। अगर आपके पास समय है, आपके पास आपको जानकारी है, कंपनियों के बारे में आप अध्ययन करके आप लगा सकते हैं। और जो बहुत अधिकतर लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं सीधे तौर पे, उन्हें पिछले 1-1.5 साल 3 साल में आए हुए निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि कोई कुछ खास जानने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी ने कुछ पैसा लगाया है तो बढ़ा ही है। लेकिन इस पे भरोसा मत कीजिए। ये बाजार में जब आप लोगों का भरोसा पूरी तरह बन जाता है, तब उसके बाद अचानक एक भारी गिरावट होती है, और ये हमेशा देखा गया और होगा। और ये बाजार का चरित्र ही ऐसा है, उसका डिजाइन ही ऐसा है कि ऐसा हुआ करेगा। और उससे बचने का तरीका यही है कि आप एक उसके बारे में जानकारी हासिल करें, क्यों ऐसा होता है और उससे बचने का क्या क्या तरीका है, आपको कैसे अपने आप को मेंटली ट्रेन करना है उससे जूझने के लिए। और नहीं तो एक म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए, और जब बाजार गिरेगा तो आपको खुशी होगी कि चलिए कम से कम अभी से पैसा आपका सस्ता लग रहा है। Next caller is Ashish from Mumbai. Ashish, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask. Good evening to the whole team. Hello. जी सवाल पूछिए। सवाल पूछना था कि जैसे मार्केट गिरता है किसी दिन, तो मैं एक रेगुलर इन्वेस्टर हूँ, SIP करता हूँ, तो अगर मैं लमसम इन्वेस्ट करता हूँ तो उसका बेनिफिट कुछ मेरे को SIP में, आपको क्या लगता है व्हाट का ये स्ट्रेटेजी कैसी है? और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि जैसे म्यूचुअल फंड में तो एक एंड ऑफ द डे का NAV कंसीडर करता है, पर जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर में जब खरीदते हैं तो वो टाइम पे उसका वो नेट प्राइस मिलता है। पर शेयर मार्केट इतना वोलेटाइल है कि जब हम खरीदते हैं तो नीचे होगा या फिर वही दिन में मार्केट ऊपर भी होता है। पर म्यूचुअल फंड में हमारा NAV लास्ट में होता है। तो करेक्ट मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जरा इस पे क्लैरिफाई करिए। थैंक यू। सही होता है। आप ओपन एंड फंड खरीदते हैं तो आपको जो उस दिन का NAV कैलकुलेट होता है, उसके आधार पे आपको NAV अलॉट होता है, वो यूनिट्स अलॉट होता है उसी NAV के आधार पे। और इस वजह से आपने देखा होगा कि कट ऑफ टाइम है, उसके पहले बाजार बंद होने के पहले आपका पैसा फंड कंपनी के पास फंड में पहुंच जाना चाहिए उस दिन का NAV मिलने के लिए। और ये अब हर निवेशकों के लिए अनिवार्य हो गया है, और यही कानून है, यही नियम है। अगर आप किसी ETF को ETF में पैसा लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल आप शेयर की तरह ही आप उसका दाम आप उसके दाम बाजार में जो प्रिवेलिंग दाम है उसके आधार पे आप अपना खरीदते हैं, आपका पैसा लगता है। और जैसे दिन में कभी भी अचानक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उसके आधार पे डिमांड सप्लाई और जो अंडरलाइंग वैल्यू उसके आधार पे ETF का दाम बदलता रहता है। आप जो पूछ रहे थे कि बाजार में जो अचानक कभी गिरावट आती है और उस समय के लिए कुछ पैसा लगाने की तैयारी रखी जाए, बड़ा मुश्किल काम है। और इसी से बचने के लिए एक डिसिप्लिन फॉलो करना बड़ा जरूरी है। Once again, a brief break in the transmission. Our expert was explaining about ETF. इसका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। कितना पैसा आप लगाएंगे, कितना पैसा नहीं लगाएंगे, कितने पैसे के साथ आप इंतजार करेंगे, ये सब चिंता करने वाली चीजें हैं। इसी से बचने के लिए आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करना चाहिए। कुछ पैसा आपका 10%, 20%, 20%, 30% आप निर्धारित करें। वो पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए, अच्छे बाजार में, खराब बाजार में। और जब ये 20-30% जो भी आपने निर्धारित करके लगाया है, इक्विटी बढ़ने की वजह से ये बहुत, अगर वो कम हो जाता है तो अपना उसको रीबैलेंस कीजिए। अगर अचानक इक्विटी बाजार गिर जाता है तब आप उस पैसे को इक्विटी में जरूर आपको लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत आगे पीछे करने से या टाइमिंग करने की कोशिश करने में मुझे लगता है कि एक आम आदमी केवल उसमें फंसता जाता है। और ये कोई नुकसानदेह चीज नहीं है अगर आप डोमिनेंटली अपना पैसा लगातार लगा रहे हैं, पर इसका कोई खास फायदा मुझे नहीं दिखता है। और दिल्ली से हमारे श्रोता अनिल लाइन पे हैं। अनिल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नमस्कार सबको। मेरा प्रश्न जो है वो केवल ये है कि मैंने
इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में पैसा लगाया था 4 साल पहले में, मोतीलाल ओसवाल का है, जो कि मेरी कैपिटल इरोड हो गई थी। बट अब जो है वो कैपिटल तो मेरी वापस आ गई है। अब मैं बराबर पोजीशन में हूँ। मेरा प्रश्न है कि मुझे अभी वेट करना चाहिए या अब कम से कम मैं अपना पैसा विड्रॉ करके कहीं और बेटर स्कीम में लगा लूं। आपने कब पैसा लगाया था और उसके बाद बाजार की क्या स्थिति होती है? एक साथ सारा पैसा लगाया था, इसके वजह से ऐसा हुआ हो, और बाजार में ये हमेशा होगा, भविष्य में भी ऐसा होगा। हो सकता है कि जब आप इसको कहीं और लगाएं, हो सकता है वहां आपको निकालने और लगाने के क्रम में ही बाजार फिर से गिर जाए। इसलिए अगर इस पैसे की आपको जरूरत नहीं है तो अपना निवेश जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि आपका फंड अच्छे फंड में, एक जो फंड में आपका पैसा बटा हो, ताकि एक फंड अगर कभी अच्छा ना करे तो पूरी तरह उस पर आपका डिपेंडेंस नहीं हो। और इक्विटी में लगाने के लिए एक आम निवेशक के लिए जरूरी है कि वो अपना पैसा थोड़ा ग्रेजुअल तरीके से लगाए, धीरे धीरे लगाए। एक साथ पैसा लगाने पे इस तरह की निराशा होती है, फिर आप उसके स्क्वायर अप करने का या मतलब रिकवर करने का आप इंतजार करते रहते हैं। पैसे की जरूरत ना हो, कुछ ना करें। And before we take our next caller, Gaurav from Ghaziabad, let's have a look at our other headline story. The procurement of paddy in Haryana and Punjab will start today. Union Ministry of Food and Public Distribution has written a letter to the Punjab and Haryana governments in this regard. The letter said paddy should be procured as per the fair average quality FAQ norms prescribed for Kharif marketing season of 2021 and 2022. And moving on to the latest in the oil market, Brent crude oil prices rose 1.9% during the week to settle at $79.28 a barrel, its fourth weekly rise. U.S. crude also rose 1.1% to settle at $75.88 a barrel, registering its sixth week of rise. Brent has risen over 50% this year and reached a 3-year high of $80.75 per barrel on Tuesday. Let's take our waiting caller, Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, a warm welcome to you on the program. Please ask your question to the expert. Thank you. So my question is, which contra or value fund do you like in this current scenario? And whose portfolio is best? And why these contra funds do not have very, new stocks? All those stocks are more or less similar. Which contra or value fund would you recommend for a long term and with the real multiplying effect? Thank you. Some of the funds which I like, Parag, you can't call it a contra fund or a value fund, so to say. But, it's conscious of the valuation most of the time. And it's quite a likable fund given its performance, given its diversity. Invesco India Contra is pursuing this strategy very relentlessly. And likewise, Tata Equity PE Ratio Fund and L&T India Value Fund. So these are my funds. These are the funds which I like. They will also be relatively lower valued, stocks with lower valuation. But then, if you're trying to think in terms of having a fund which will fall less if the market crumbles, everything falls when the market falls. Well, I'm afraid the time is running out, and we would like Suresh from Noida to call our expert again next week for a question on mutual fund. And it's time also to thank our mutual fund expert, Dhirendra Kumar, for being with us on the program Market Mantra. Thank you so much, Dhirendra. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Power Ministry promulgates Electricity Rules 2021 to regulate transmission system planning, development and recovery of interstate transmission charges. Foreign investors pump in over 26,000 crore rupees in the Indian capital markets in the month of September. And paddy procurement begins in Haryana and Punjab. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra.